بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان محمد طیب کبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سیف الاسلام۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسر پنڈ خرد کی ایک بڑی معزز شخصیت مولانا محمد عبدالحلیم رضوی صاحب، اور آپ کچھ عرصہ قبل بیرون ملک تھے اور آپ ابھی تشریف لائے ہیں، تو حضرت علامہ صاحب سے ہم کچھ سوالات کریں گے جو دیگر علاقہ جات کے حوالے سے ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طیب علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ۔ تو علامہ صاحب، جیسا کہ آپ ابھی چند دن قبل ہی بیرون ملک سے تشریف لائے ہیں اور آپ نے ایئرپورٹ کے مسئلے سے بھی آپ گزرے، اور ہم آزاد کشمیر میں الحمدللہ رہتے ہیں، اور یہاں پر ایک جو سب سے بڑی مار ہے ہمیں ایئرپورٹ کی ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور جیسا کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے جو اوورسیز بھائی ہیں جو وہاں سے بیرون ملک سے تشریف لاتے ہیں، بالخصوص آزاد کشمیر میں، تو ان کا ایک بڑا مطالبہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ایئرپورٹ ہونا چاہیے اپنا، تو اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طیب صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر مجھے یہاں دعوت دی۔ جی بالکل، میں پچھلے دنوں ہی برطانیہ سے آیا ہوں، تو اس وقت جو حالات ہیں ملک کے اندر، آپ کو پتہ ہے، ہمیں جتنے اکثریت اس ٹائم جو ہے نا، وہ جو ایئرپورٹ کا استعمال ہوتا ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا، یہ ہم کشمیری زیادہ کرتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے۔ ہماری بہت زیادہ جو تعداد ہے وہ یورپ میں اور دیگر ممالک کے اندر موجود ہیں۔ بالکل ایسے تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں کشمیریوں کو کبھی اسلام آباد جانا پڑتا ہے، کبھی سیالکوٹ جانا پڑتا ہے، کبھی لاہور ایئرپورٹ پر اترنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے کیونکہ یہ ایک دیرینہ مطالبہ ہے، اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا سے آپ واقف ہیں، آپ وابستہ ہیں سوشل میڈیا سے، تو سوشل میڈیا پر اس کے اوپر بہت بڑا ایک مطالبہ اور ایک بہت تحریک شروع ہے۔ وہ ہمارے دوست ہیں ادھر کے چکسواری کے ہی ہیں، عاطف منیر صاحب اور ان کی ٹیم پوری جو ہے وہ اس کے اوپر زور لگا رہی ہے، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر مطالبہ حکومت کے سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ ہمیں ایئرپورٹ کیوں نہیں دے رہے، ہمیں ایئرپورٹ سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے، کہ ہمیں جیسے کہ میں نے بتایا کبھی اس ایئرپورٹ پہ جانا پڑتا ہے، کبھی اس ایئرپورٹ پہ جانا پڑتا ہے، ہمارے مال بھی محفوظ نہیں ہے، ہمارے بے شمار جو حضرات جب آتے ہیں بیرون ملک سے تو ان کو راستے میں مار دیا گیا ہے۔ کتنے واقعات آپ کی نظر میں موجود ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد سے آتے ہوئے آج فلانا کشمیری شہید ہو گیا، کبھی ڈڈیال کا جوان شہید ہو گیا، کبھی جناب کوٹلی کا شہید ہو گیا، کبھی میرپور کا ڈاکو نے لوٹ لیا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اس وقت آزاد کشمیر کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، وہ ایئرپورٹ کا ہی ہے۔ تو ہم حکومت پاکستان سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی ہٹ درمی سے پیچھے ہٹیں اور ہمیں ایئرپورٹ مہیا کیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک کشمیر یہ ہے اور ایک جموں کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر جو بھارت کے زیر قبضے میں ہے، زیر مطلب قبضے کے اندر ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو جناب 3 ایئرپورٹ ہیں ان کے، 2 انٹرنیشنل اور ایک نیشنل لیول کا ڈومیسٹک جو جہاں فلائٹس اترتی ہیں۔ تو اگر ان کشمیریوں کو وہاں مودی حکومت دے رہی ہے سہولیات، تو ہم کیوں محروم رہ رہے ہیں؟ تو اس لیے میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں آپ کے اس چینل کے وساطت سے کہ مہربانی کریں اور جلد از جلد کشمیر کے لیے ایئرپورٹ کا جو اعلان کریں اور اس کے اوپر باقاعدہ ورک شروع کیا جائے۔ بالکل ایسی ہے۔ تو علامہ صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو ضلع میرپور آزاد کشمیر ہے، یہ ڈویژن بھی ہے، آزاد کشمیر جو ہے ہمارا میرپور ہے جو، تو یہاں پر ایک آپ کو پتہ ہے اسلام گڑھ سے میرپور والی سائڈ تک ایک پل بنایا گیا تھا، رٹھوا ہریام برج۔ تو ایک عرصہ دراز سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہریام برج کے نیچے سے ایک جو ہے کشتیوں والے ہیں، بائک مچھوے جو ہیں ادھر ادھر اسکوٹر کرتے رہتے ہیں جو بائک سے، تو وہ جو برج ہے وہ وہیں کا وہیں، جو اتنا سا چھوٹا سا ٹوٹا رہ گیا، جو چھوٹا سا حصہ رہ گیا ہے، وہ ابھی تک بھی ادھورا ہی ہے، مکمل نہیں ہوا۔ اور چند دن قبل جو ہمارے وزیر اعظم کشمیر کے وہ محترم تشریف لائے اور انہوں نے جناب دوبارہ ایک کانٹریکٹ کیا ہے کہ جی انشاءاللہ 3 سال میں، جو آنے والے 3 سال ہیں، یہ جو برج ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں طیب صاحب، یہ جو برج کا مسئلہ آپ نے بتایا ہے نا، یہ ہم آج سے تقریباً 15 یا 20 سال پہلے یہ شروع ہوا تھا، اور یہ تقریباً 7-8 کلومیٹر ہے، اور یہ میرپور اور اسلام گڑھ کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا، یوں سمجھ لو کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے بالکل یہ پل۔ اور اس کی جب کنسٹرکشن شروع ہوئی تھی تو وہ میں نے جیسے بتایا کہ تقریباً 15 سے 20 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اور اب آج تک وہ جو ہے وہ آباد نہیں ہو سکا۔ اور ابھی اگر آپ وہاں اس پل کے اوپر جا کر دیکھیں تو اتنے مطلب کھڈے اور وہ ویران رہنے کی وجہ سے
جو पुल है ना वो तबाह हो रहा है, बाकी जो उसका हिस्सा है यानी कि 95% जो कंप्लीट पुल है ना वो भी दफा हो रहा है, दूसरे लफ्ज़ों में जैसे हम कहते हैं कोई चीज दफा हो रही है, ठीक है। तो उसकी और ये जो चंद 100 मीटर रह गया है, इसके ऊपर आज तक हमने सियासत ही देखी है। जो भी आया उसने ऐलान किया, अपनी चार देरे ठू ठू बल्ले क्या कहते हैं उसको बल्ले बल्ले करवाई, ठूठा हो गई, और उसके बाद वो ऐलान किया जी कि, और वो जो गंडापुर साहब जो थे वो भी आए थे, उन्होंने भी ऐलान किया था जी कि मैं जो इतने टाइम के अंदर इसके ऊपर से गाड़ी गुजारूंगा। ना वो टाइम है और ना वो गाड़ी गुजरी आज तक। और नीचे से बेचारे मोटरसाइकिलों वाले मछुए के ऊपर जाते हैं, तो कासिम मजीद साहब ने ऐलान किया जी कि इनकी जानों को खतरा है, लिहाजा मछुए को बंद किया जाए। अब मुझे बताएं, लोग टाइम बचाने के लिए, वक्त बचाने के लिए अगर मछुए के ऊपर सफर कर रहे थे, तो कासिम मजीद साहब को चाहिए तो ये था कि उसको पुल को कंप्लीट करते। जो इस वक्त हमारे वजीर मुमलिकत है ना उमूर मंगला डैम के, तो उनका काम ये बनता था कि उन बजाय इसके पुल को कंप्लीट करने का उन्होंने कह दिया जी कि बस ये जो मछुए ना इनको फौरन से बंद किया जाए। मतलब ये कोई अकल में आने वाली चीज है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये पुराने काफी टाइम से इसके ऊपर सियासत हो रही है। जो भी आया उसने अवाम को चूना लगाया या उल्लू बनाया, ठीक है। और आज तक, और ये जो आपने वजीर आजम की हालिया दिनों के अंदर आपके ऐलान किया गया और यहाँ सब कुछ किया गया, मैं अपने दोस्तों को बताता रहा हूँ कि इस प्रोग्राम का क्या मकसद है। इतने रुपए खर्च करके लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और प्रोग्राम तो ये बनता था आप पुल को खामोशी से कंप्लीट करने के बाद उसके ऊपर इफ्तिताह करते उसके ऊपर जो भी तख्ती वगैरह लगाते, बड़ी खुशी होती, चलो ठीक है जी के, और कहते अवाम को कि आओ जी मैंने आपके लिए पुल तैयार कर दिया है। और फिर आप कह रहे हैं कि मैंने इसको 3 सालों के अंदर कंप्लीट करना है। चंद 100 मीटर का पुल 3 सालों के अंदर, और 5 अरब रुपया इसके ऊपर जो है वो खर्च हो रहा है। ये आपको पता है, तकरीबन 500 अरब। तो इसलिए 5 अरब सॉरी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान कश्मीर की हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, वज़ीर आज़म साहब से, कि अवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ें और खामोशी से पुल बनाएं। और उसके बाद, और मैं अब तैयब साहब किस से गिला करें, जो हमारी अपनी अवाम है वो खुद जाकर उधर नारे मारे, बल्ले बल्ले की, खाया पिया, बिरयानी खा ली और खा के वापस आ गए खुशी खुशी, सुभान अल्लाह जी। और सोशल मीडिया पर पोस्टें चढ़ गई जी कि 3 साल के अंदर पुल कंप्लीट होने वाला है। तो इसलिए माजरत बात थोड़ी सी लंबी होगी, तो कहने का मकसद ये है कि हम तब तक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस पुल का कुछ बनेगा, जब तक पुल कंप्लीट नहीं हो जाता और उसके ऊपर से जो है वो इफ्तिताह नहीं हो जाता और गाड़ियां नहीं गुजरती, तब तक ये 3 साल का 10 साल का भी ऐलान करें, 1 महीने का भी कहें, जब तक पुल कंप्लीट नहीं होगा तो हमें यकीन नहीं आता इस बात का। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्लामा साहब, जो मेरा अगला सवाल है आपसे, वो आपके जो भाई गाँव है इसर पिनखोर यूनियन काउंसिल है जो इसर की भगोर, तो वहाँ के हवाले से एक सवाल है कि एक अरसा से हम अपने बुजुर्गों से भी सुनते आ रहे हैं कि भगोर में एक पानी की बड़ा मसला चल रहा है कि वहाँ पर जो साफ पानी है, पीने का पानी है बिलखसूस, उसका बड़ा मसला है। तो कुछ वक्त कबल मुझे एक सुनने में चीज़ आई कि आपके जो वहाँ के मुंतखब यूनियन काउंसिल के मेंबर हैं, जो उनको तकरीबन 40 लाख रुपए की मालियत जो है वो दी गई है पानी का मसला हल करने के लिए। इस बात में कितनी सदाकत है और कितनी सच्चाई है, और बिलखसूस जो आपके यहाँ का पानी का मसला है, जो बिलखसूस आपकी जो भगोर का यूनियन काउंसिल पिनखोर, इस हवाले से आपका क्या कहना है जनाब? तैयब साहब, ये जो भगोर की आपने बात की है ना, और पानी की आपने बात की है, तो ये बचपन से हमने भी यही सुना है कि, और आप यकीन करें कि 5 या 6 इलेक्शन हो गए मुझे भी वोट डालते हुए, और जो भी आया उसने सबसे पहला ऐलान भगोर को यही गोली दी है जी कि आपका जो है हम सबसे पहले मसला जो पानी का वो हल करेंगे। अब हिसाब लगा लें, अगर 6 इलेक्शन बनते हैं तो तकरीबन 25-30 साल बनते हैं, ठीक है। 30 साल का अरसा बनता है, जो सुनते आ रहे हैं हम। वोटिंग मतलब मेरा वोट तो जब मैं 18 साल का हुआ था तब से मैंने वोट डालना शुरू किया, लेकिन हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं और हमारे बाप दादा ने इस पानी के लिए वोट दिए हैं। लेकिन यकीन करें आज तक एक बार पानी लगा, उसके बाद पता नहीं उसके ऊपर क्या सियासत हुई, वो बंद करवा दिया गया। जब हुकूमत आई, जिन लीडरों को हमने वोट दिया उन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया, और उसके बाद फिर और आज तक यही मसला चला आ रहा है। हमारे पास आते हैं और हर बार कोई नए तरीके से इस मसले को पेश करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अब लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए तो एक पार्टी आगे उन्होंने 40 लाख का ऐलान कर दिया कि जी हमने 40 लाख का चेक, और इवन के उन्होंने लहरा के दिखाया, ये देखो जी हमारे पास चेक आ चुका है 40 लाख का, ये अब आपका पानी का भगोर का मसला हल हो गया। अभी आप देख सकते हैं, अभी जो
आगे नया इलेक्शन आने वाला है, 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन अब पता नहीं आ रही चल रहा कि वो 40 लाख का चेक कहाँ गया। पिछले दिनों मेरी जो हमारे मेंबर हैं बगौर के, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि पता नहीं मैंने फलाने बंदे को चेक दे दिया, फलाने को चेक दे दिया, मेरे पास आया था, मेरे पास अब चेक नहीं है। ठीक है, तो ये पानी का जो बगौर का मसला है, ये ऐसे है जैसे चक रेहाम पुल का मसला है। जो भी आता है अपनी तरफ से ऐलान करता है, वोट लेता है और फिर उसके बाद गायब। बिल्कुल तो ऐसे ही। इसलिए और इसके अलावा हमारी अब सड़क का, अब पानी का मसला हल नहीं हुआ था, तो सड़क के ऊपर अगर आप बगौर जाएं तो देखें उसके अंदर कितने कितने बड़े खंडरात बन चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। अभी एक मसला हल नहीं हुआ था तो दूसरा मसला ऊपर से शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इसलिए हमारा ये जो हमारे बल्दियात के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो चेयरमैन और जो लोग हैं, इनसे हम मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द इस रोड के मसले को भी हल करें। और उससे पहले जो पानी का मसला जो, और अभी पाइपिंग शापिंग का भी कोई इशू चल रहा था, उसको कंप्लीट करें जल्द अज जल्द और बगौर को पानी फराहम करें। और इसके ऊपर मैं एक और बात ऐड कर देता हूँ। अभी मेरा पिछले दिनों ये जो सुपरवाइजर साहब हैं इधर पानी के हवाले से मेरी उनसे बात हुई। मैंने कहा सर कि आप इसर को पानी दे रहे हैं, कॉलोनी को पानी दे रहे हैं, हर तरफ पानी दे रहे हैं, तो हमारे बगौर के बारे में कुछ मेहरबानी करें, कोई नजरसानी करें। तो यकीन करें तैयब साहब, मैं हैरान रह गया उनका जवाब सुन के। उन्होंने कहा कि आपके बगौर में तो पानी चल रहा है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा सर मैं भी बगौर में रहता हूँ, पानी कहाँ चल रहा है, मुझे तो नहीं मिल रहा। तो मैंने आगे पीछे से फिर पता लगवाया तो कहीं से भी पानी नहीं चला। मैंने कहा सर कोई पानी नहीं आ रहा। अच्छा, वो हैरान रह गए और फिर वो कहने लगे कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर चलो मैं उसके बारे में जो है ना वो मैं तहकीक करूंगा, फिर पता चलेगा। अच्छा। तो ये हमारी हालत है। अब ऊपर मतलब ऊपरी सतह पे देखें, पानी शो हो रहा है उन लोगों को, ऊपर वालों को, बिल्कुल। लेकिन हमें नहीं मिल रहा। अल्लाह। ठीक है, तो ये हमारे मतलब सिस्टम की हालत है, देख लें। इसी तरह से मतलब अब हुकूमत के जितने भी महकमा जाते हैं उनके अंदर यही सिस्टम होता है। गरीब बेचारा नीचे मारा जाता है, ऊपर बस यही होता है जी कि वो काम हो गया है, ये फंड वो फंड पास करवाए और अपनी जेब में डाले और कहा जी के काम हो गया, हमने फलानी जगह बोर करवा दिया, फलानी जगह जो है वो मैंने ये करवा दिया, वो करवा दिया, रोड बनवा दी बस। तो ये एक सिस्टम है। अल्लाह ताला ये इसका हाफिज। अब दुआ करें हमारे लिए भी, अल्लाह करम फरमाए। तो जैसा कि नाज़रीन कराम आपने समाअत फरमाई, जो हमने मुल्क की सूरत हाल पर जो गुफ्तगू की है अल्लामा साहब से, और बिलखसूस जो आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल हैं और जो अल्लामा साहब के इलाके के मसाइल हैं उन पर भी हमने गुफ्तगू की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमारी ये वीडियो वो देख रहे हैं हज़रात, तो यूनियन यूसीस के जितने भी ये मेंबर मुंतखब हुए हैं, तो जितने भी इलाकों में पानी के मसाइल हैं बिलखसूस और जो सड़कों के मसाइल हैं वो हल करें, वो आपकी ज़िम्मेदारी में। तो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह वस्सलाम।